सकता है। तो जैसे कि heterogeneous catalyst, different phases, it is called heterogeneous catalyst. Catalyst is generally solid और इस केस में ज्यादातर वो solid होता है. Provides a suitable surface for the reaction to take place. Gaseous phase, see here, three examples are here given. First is SO2 plus O2 in the presence of platinum, which is in the solid state, but the reactants are in gaseous state, gives 2SO3. Similarly, formation of ammonia, the reactant is in the gaseous state, but the catalyst is in solid state. Iron is the catalyst. So it is heterogeneous. And also another examples are given in B and C. You can see, I will give you notes also. Catalytic specificity. Next is the catalytic specificity. Refers to the particular ability of a substance or closely related group of a substance to catalyze a given type of chemical transformation, and identifying the type of catalyst which is good for a particular reaction. That means, suppose we take the nickel catalyst or MnO2 catalyst, then it can work only for a particular reaction, not for another reaction. So it is specific in nature. Enzymes are powerful and highly specific catalysts. Enzymes also act as a catalyst. In our bodies, there are so many enzymes that acts as a catalyst. And so in our body, there are also so many reactions going on. And for every reactions, there is a particular enzyme. You have heard name of the gymase and invertase. These are yeast. These are the enzymes which are working within the body as an enzyme, and that acts as a catalyst. So it is very specific in nature. For example, urease. Urease is absolutely specific for the substrate urea, NH2CO and NH2. NH2. This one is urea. ये यूरिया के लिए यूरेज ही कैटलिस्ट काम करेगा, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर है थायो यूरिया NH2SO NH2, उसके लिए ये वर्क नहीं करेगा, है ना. So this one is, so it is very specific in nature. Now, selectivity of catalyst. The ability of a catalyst to direct reaction to yield a particular product is referred to as selectivity of the catalyst. For example, by using different catalysts, we can get different product. Here, you should understand that we take reactant are all the same, but if we use other catalysts, 1, 2, 3, 3 types of catalysts, then we get 3 types of products. Example is given. In both the cases, in both the 3 examples, the reactant is carbon monoxide and hydrogen, another is hydrogen reactant. But when we use the nickel catalyst, we get methane and butter. Similarly, when we get same reactant and carbon monoxide, copper, we get copper or ZNO, then we get methyl alcohol. Another is the same CO plus H2 in the presence of copper, that will give formaldehyde. So selectivity is also a very important property of catalyst. So catalysts are highly selective in nature. They can accelerate a particular reaction, while they can also inhibit the reaction. Inhibit means
उसको डिक्रीज भी कर सकता है। वही कैटालिस्ट अगर किसी दूसरे में हम रिएक्शन में लगा दे तो वो रिएक्शन डिक्रीज भी कर सकता है। सो एक्सेलरेटर का वो काम कर रहा है एक केस में, और दूसरे केस में वो इनहिबिटर का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द कैटालाइज्ड रिएक्शन एट सॉलिड सरफेस। तो अब हम लोग को जानना है कि आखिर क्या मैकेनिज्म है कैटलिस्ट का जो रिएक्शन को इतना फास्ट कर देता है और रिएक्शन कम टेम्परेचर पर भी और इतना जल्दी क्यों प्रोडक्ट दे देता है। The mechanism is based on the adsorption theory. You know what is adsorption? Adsorption is the absorption only at the surface, not at the bulk. Bulk means अंदर में वो नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, केवल ऊपरी सतह पर, ऊपरी सरफेस पर वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यही थ्योरी यहाँ पर हम लोग को लागू करनी है। This theory is useful to explain the heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis proceeds through following steps. First है the reactant molecules are diffused from the bulk to the surface of the solid catalyst. Reactant तो बहुत ज्यादा है solid, और catalyst कम रहता है, और कैटलिस्ट के सरफेस पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट ऑनटू द सरफेस एज ए रिजल्ट। क्यों रिजल्ट, कैसे वो उस पर एब्जॉर्ब होता है, वो ए बी सी तीनों में दिया हुआ है। इट इज गिवन इन 1 मिनट। धनंजय, some of the bonds of adsorbed reactant molecules are weakened. जैसे ही वो सरफेस पर कैटलिस्ट एब्जॉर्ब होगा तो उसका कुछ बॉन्ड वेट एक्चुअली क्या होता है, सम ऑफ द बॉन्ड्स जैसे ही वो एब्जॉर्ब होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड्स वीक हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि एनर्जी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिलीज। जैसे बॉन्ड वीक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी रिलीज होने के कारण कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यू हैव read in chemical kinetics that कि रिएक्टेंट को अचीव करना पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कुछ भी एनर्जी है, सपोज करो 20 किलो कैलोरी, लेकिन जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी मान लो उसका है 50, तो वो 50 तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो रिएक्शन नहीं प्रोसीड हो सकता है। तो यहाँ यही क्या होता है कि जैसे ही बॉन्ड वीक होता है तो उसका मतलब इंथैल्पी, एनर्जी इक्वल टू इंथैल्पी इज रिलीज्ड। तब एनर्जी जो रिलीज होता है दैट हेल्प्स टू अटेन द एक्टिवेशन। तब उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जल्दी अटेन हो जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, बहुत जल्दी गेन कर लेता है एक्टिवेशन एनर्जी, और जल्दी हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है और रिएक्शन प्रोसीड होता है। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। उसके बाद एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है। फिर क्या होता है कि फोर्थ नंबर डीजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉलिड। अब उससे वो जो प्रोडक्ट है वो उससे अलग होने लगता है, लिविंग द कैटलिस्ट सरफेस वैकेंट, और वो जो वैकेंट सरफेस है उसमें अब अनदर मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होता है। तो यही प्रोसेस चलते रहता है ना। कंसीडर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। यहाँ इथिलीन है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, और इसमें कैटलिस्ट इज निकेल and product is ethane. So what happens, see in the figure, first this attacks the reactant molecule, attacks on the surface of the nickel, and both the reactants is on the surface of the nickel, and here when it adsorbs its bond is weakened. See here dotted line, that means its bond weak होने लगता है, और जैसे जैसे बॉन्ड वीक होता है तो एनर्जी ऑफ एंथैल्पी रिलीज होता है, और ये एक 4 सेंटर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, और तब फिर वो
बाद में ये डिजॉर्प्शन होता है, यानी कि उससे अलग होकर के हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, और निकल कैटलिस्ट एज इट इज रह जाता है, यानी कि कैटलिस्ट जैसे कि तैसे रह गया और प्रोडक्ट भी हमको मिल गया। तो ये सारा प्रोसेस से हो रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज एंड एफिशिएंसी ऑफ नैनो पार्टिकल। अब है कि कैटलिस्ट के साइज पर कैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और नैनो पार्टिकल जो है, नैनो पार्टिकल क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसका साइज होता है करीब 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो पार्टिकल साइज वेरी इफेक्टिवली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट। तो क्यों ये स्मॉलर होने से पार्टिकल जितना स्मॉल होगा ये उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा कैटलिस्ट। स्मॉलर रिएक्टेंट पार्टिकल्स प्रोवाइड ए ग्रेटर सरफेस एरिया। जितना मान लो कि एक निकेल है और निकेल एक अभी बड़ा पीस है, तो हम उस कैटलिस्ट को अभी यूज कर रहे हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो अभी मान लो कि 20 स्क्वायर फीट है। अगर उसको हम ब्रेक करके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में करते तो उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस ही का यहाँ जरूरत है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कैटलिस्ट वहां एब्जॉर्ब होगा, और तो हमारा एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पर ऑल दिस आर रिटन इन हियर। तो स्मॉलर रिएक्टेंट पार्टिकल्स प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया which increases the chance for particle collisions। उससे ज्यादा पार्टिकल कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब टकराना। So the reaction rate increases and the surface area of a particle is inversely proportional to the particle size। मतलब कि इनवर्सली मतलब उल्टा, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा पार्टिकल साइज उतना ही छोटा होगा। दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। यानी कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट भी उतना ही जल्दी बनेगा, यानी कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जो कि कैटलिस्ट का फंक्शन यही है कि रिएक्शन को फास्ट करना। सिंस नैनो पार्टिकल्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, because it is very 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 small, you can't see the size of the particle compared to the bulk measure. So they are very effective catalysts, and the use of nanoparticles as catalyst has a wide range of properties, and various elements and materials like aluminum, iron, titanium oxide, clay, silica are used as catalysts in nanoscales. The nanoparticles as catalysts have following advantages. First is high activity, second is high selectivity, third is the excellent stability, fourth is the easy separable उसको अलग करना बहुत easy है, next is high efficiency, and sixth is the energy efficient. The high activity and high efficiency of a nanoparticle catalyst is mainly due to their high surface area due to smaller particle size. It results greater number of free valencies on the surface of the nanoparticle. Gold nanoparticle of this size, जिसका size है 5 nanometer, and very efficient for the oxidation of carbon monoxide in an environment of hydrogen gas. Enzyme catalysis. Enzymes are water soluble proteins. पहले ये मैं बता चुकी कि एंजाइम भी एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है। क्यों है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन है which are responsible for catalyzing a number of chemical reactions within the cell and living animals and plants. They have catalytic activity even outside the cell, and hence they are called biochemical catalysts. Enzymes are produced by living cells. हमारे बॉडी में भी बहुत सारा एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है which acts as a catalyst, very efficient catalyst. Yeast क्या है? Yeast is a cellular plant.
and is rich source of various enzymes. yeast में बहुत सारा enzymes होता है, such as gymase, invertase, and all these catalysts are seeing here. All catalysts act on different reactions. All are given here. Features: efficiency. Enzymes are highly efficient catalysts. They increases rate of reaction to maximum by decreasing activation energy, which we have already known. For example, decomposition of hydrogen peroxide in the absence of catalyst requires an activation of 75 किलोजूल. यहाँ देखो सब लोग एग्जाम्पल क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन के लिए उसमें एक्टिवेशन 5 किलोजूल चाहिए. तो इतना जब तक वो अटेंड करेगा, वो रीच करेगा, तभी वो प्रोडक्ट देगा. लेकिन अगर हम उसमें एक कैटलिस्ट डाल दे प्लैटिनम, तब इसका एक्टिवेशन एनर्जी लो होकर के कितना पहुंच जाएगा? 49 किलोजूल. इन द प्रेजेंस ऑफ, और अगर एंजाइम कैटलिस्ट लिए तो ये तो और भी एफिशिएंट है, तब इसका एक्टिवेशन एनर्जी और भी ज्यादा लो हो जाएगा, 8 किलोजूल. स्पेसिफिसिटी ये हम लोग पढ़ चुके हैं. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन फंक्शन. A certain enzyme increases the rate of a certain chemical reaction and not a certain type of chemical reaction. ये भी हम लोग देख चुके हैं. We have already seen this. Next is temperature. The activity of enzyme is maximum in a certain temperature range called optimum temperature range. It is usually 298 Kelvin to 310 Kelvin. Optimum temperature for the enzymatic activity is in human body is 98.62 or 37 degrees. pH value range is 5 to 7. For human body, it is 7.36 to 7.42. Cofactor or coenzyme is a substance that works with enzyme to initiate or add the function of the enzyme. मतलब उसको अगर एंजाइम के साथ ऐड करेंगे तो एंजाइम का फंक्शन शुरू हो जाएगा. It can be considered a helper molecule for a biochemical reactions. Coenzymes are small, non-proteinaceous molecules that provide a transfer site for a functioning enzymes. These may be organic cofactors and also inorganic. इसमें organic भी हो सकता है और inorganic भी हो सकता है. Enzymatic inhibitors. The activity of enzymes decreases in the presence of heavy metals, ions such as silver and mercurius, etc. Now, mechanism. How इसका mechanism हम लोग को अब जानना है कि कैसे catalyst work करता है. तो इसमें scientist, one of the very known scientists, Michaelis Menten, who give the mechanism of catalysis. This is known as the Michaelis Menten mechanism. इसको you should understand very carefully because so many things are there to understand. Michaelis Menten equation is commonly used to study the kinetics of reaction catalyst by enzyme, whose feature is as. इसका features 1 or 2 दो features है. At low substrate concentration, reaction rate increases sharply, and for high concentration of this substrate, all the enzymes in the solution is busy. क्योंकि एंजाइम बहुत थोड़ा है, सारा एंजाइम्स बिजी हो गया, तो रेट अटेंड से मैक्सिमम वैल्यू, और उसको हम कहते हैं वी मैक्सिमम, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया. मैक्सिमम. All these can be explained by Michaelis Menten mechanism. According to this, suppose करो substrate is and enzyme is E, capital E, combined together forming a complex intermediate ES in a reversible manner. Reversible means forward direction में भी और backward direction में. This then transform into product P और enzyme वैसे ही वैसे बाहर आ जाएगा.
वो रिएक्शन में यहाँ पर I have shown this in this. See here, he E plus S gives ES, and forward reaction whose rate constant is K1, and for the backward reaction K minus 1. It is written minus K1, not minus K1, but K minus 1. And ES, minus K1. And this ES gives enzyme which comes out as it is, and product is form P. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का K2 है, रेट कांस्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स में तुम लोग रेट कांस्टेंट पढ़े हो, और उसके बाद है माइनस K2 बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझने का चीज है, ये रोज रेड लाइन से जो हम सर्कल किए हैं और उसको कट किए हैं, तो क्यों कट किए? सपोज कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट तो तुरंत ही नहीं बन जाएगा, और बना भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है? ओके। तो बहुत थोड़ा सा बना, तो बैकवर्ड रिएक्शन फिर तुरंत करना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ड्यूरिंग initial period of reaction it is difficult to proceed the backward reaction, so K minus 2 can be neglected, इसलिए उसको क्रॉस किए। क्या हुआ? ड्यूरिंग रिएक्शन क्या है? ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES जो कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES। जितना वो बन रहा है उतना ही वो टूट भी रहा है। तो एजम्पशन अब मेड हो, एजम्पशन इसमें क्या होगा कि ES K1 ES ये फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए होगा ES सबस्ट्रेट, तो इसलिए K minus 1 ES। तो अब ये सबको इस तरह से हम करके सॉल्व करके ये दोनों का रेशियो को हम KS ले सकते हैं, जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ES करते हैं। लेकिन अब आगे देखो, अब क्या हो रहा है कि टोटल एंजाइम कितना है, ये मान लो कि E0 है। पहले तो हम E लिए, लेकिन अब जब रिएक्शन हो रहा है तब टोटल एंजाइम को हम E0 माने, सपोज किए। तो ये E0 में क्या क्या हुआ? जो लिए थे E, और जो ES बना उसमें भी कुछ E है, ये दोनों हुआ। तो E इक्वल टू क्या होगा? E0 माइनस ES, ये रिएक्शन 2 हुआ है। तो अब पुटिंग द 2 in 1 यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते जाओ, ये बहुत इजी है। सॉल्व करते करते हमको ये मिला इस तरह से, E0S by KS प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S यानी सबस्ट्रेट इक्वल टू ES। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए। व्हेन द कॉम्प्लेक्स, अब हम प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं कि जब प्रोडक्ट की तरफ हम देख रहे हैं, देन वेलोसिटी विल बी V0, यानी ES से जब प्रोडक्ट बन रहा है उस समय वेलोसिटी V0 माने हैं। तो ये V0 इक्वल टू क्या होगा? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ES। इक्वेशन में देखो ऊपर, एंड दिस इज द इक्वेशन 3। अब ये जो V0 है और K2 ES, अब ES का वैल्यू यहां से हम इसमें पुट करेंगे, है ना? यहाँ एक लाइन तुम लोग लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ES इन, या इसका भी एक नंबर दे देना। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा 4। अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? इसको भी थोड़ा सा तुम लोग केयरफुली सुनो। मान लो कि सपोज रिएक्शन हो रहा है एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में, 10 मॉलिक्यूल्स है एंजाइम का, और हमेशा एंजाइम मॉलिक्यूल्स कम रहता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज्यादा रहता है। तो अगर 10 का 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, और उसको मैक्सिमम से हम लोग आते हैं। सो इसमें जो कम रहता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग। तो यहाँ एंजाइम जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कम है, तो वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो रेट, जो लिमिटिंग फैक्टर है उसी पर रेट डिपेंड करता है। तो रेट डिपेंड्स ऑन एंजाइम कंसंट्रेशन। So V maximum when all the molecules of the enzyme are involved in the reaction giving product, then V maximum equal to K2 E0, क्योंकि total molecule E0 है। ये putting this equation in 4 we get this।
तो इक्वेशन हमारा यही माइकेलिस मेंटन इक्वेशन है, लेकिन इसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन भी आया था, उसको भी हम कर ही दिए हैं तुम लोग के लिए। तो यहाँ तक भी अगर तुम लोग कर देते हो तो ठीक है। Modification. It is not necessary that ES will reverse, but it will go to product side. ये कोई जरूरी नहीं है कि जो शुरू में हम दिखाए कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ देखो कि ये ES पहले तो E प्लस S मिलके ES दिया, और फिर हम लोग कह रहे हैं कि फिर तुरंत बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, लेकिन हो सकता है it may be that this ES will give product also. तब इस केस में क्या होगा, हमारा K1E plus S इक्वल टू माइनस रिवर्स के लिए K minus 1ES प्लस हियर K2ES, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जितना कांस्टेंट है ये सभी कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट को मिला के हम एक दूसरा कांस्टेंट दे सकते हैं जिसको Km कहते हैं, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। तो यानी ये इक्वेशन आ गया हमारा 7। बट E0 इक्वल टू हम वी हैव सीन दैट E0 इक्वल टू E प्लस ES, तो E इक्वल टू E0 माइनस ES। तो अब E का वैल्यू यहाँ पर ये जो E आया इसको पुट किया, तो पुटिंग इक्वेशन 8 इन 7 वी विल गेट दिस Km। अब इसको सॉल्व करने पर ये पूरा हमारा इतना आ गया, ES इक्वल टू इतना। बट V0 इक्वल टू K2ES, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अब V0 इक्वल टू K2ES, ES का वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे, फिर इसमें यहाँ एक लाइन छूट गया, इसको तुम लोग लिख लेना। तो ये हमारा इक्वेशन फिर आया, Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी था उसका हाफ हो गया। V0 इक्वल टू V मैक्सिमम बाई 2। तो अब ये हम यहाँ पर V0 के जगह V मैक्सिमम बाई 2 रख दिए, तो ये V मैक्सिमम कट गया और हमारा आया Km प्लस S इक्वल टू 2S। तो Km इक्वल टू S, यानी सो Km इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ। तो ये ग्राफ में भी हम शो किए हैं कि जब V मैक्सिमम है हमारा 100 मान लो और इसको हाफ कर दिए 50, तब इस समय जो हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा Km, जो यहाँ पर हमारा आया है ना। तो ये हो गया माइकेलिस मेंटन mechanism. Next is the acid base catalysis, the chemical reaction taking place in the solution which are catalyzed by acid or base or both are called acid base reaction. तो इसमें जो भी है ये सारा पूरा पढ़ने से पता चल जाएगा, पूरा already these are written here, so you can read this, and this is the end of the chapter catalyst. So thanks, we will again meet in the next class. Okay, bye. Bye, ma'am.